Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing motion and this is lecture number 3. I hope you have already watched part 1 to part 2 before watching this part 3. इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पिछली क्लास में जो बात किया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और उनके ग्राफ्स के बारे में, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। आज बात करेंगे इस क्लास में हम लोग स्पीड के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या है? दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज। टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज is called speed. Speed. Time rate of change is called speed. So speed is nothing else but time rate of change. Means what is this? Change of position. Time rate of change of position. That is also called time rate of change of position. Position is called speed, or you can also define as speed is the rate of change of distance. So speed is defined as distance upon time. Distance upon time, right? Suppose a body covers, for example, if a body covers 40-meter distance in 5 seconds, right? Then speed is equal to total distance covered is 40 meter and time is 5 seconds. So 40 by 5 is 8 and meter by second, that is called meter per second. So SI unit of speed is SI unit, international system of unit is meter per second. Meter per second. So speed is nothing else but distance traveled upon time taken. Total distance traveled upon time taken. Time rate of change is called speed. So we will have to define the speed without any direction. There is no direction. Distance is the total distance traveled by the body. So without keeping in mind the direction, the distance actually traveled by the body is the path, length of path. Distance is what? Distance is nothing else but we can say the actual length of path. Actual length of path is distance. Path is distance, right? Actual length of path is distance. So there is a word called another word that is called displacement. And what is the difference between these two? First, let me explain this. A particle starts from A and goes to B, right? Particle starts from A and goes to B and again return back to A. Then again return back to A. Suppose the distance between A and B is 20 meter. So in that way, from A to B cover 20 meter and from B to A cover again 20 meter. So the total distance traveled is 20 plus 20, that is 40 meter. Irrespective of the time taken, that how long time he has taken from A to B, suppose he has run from A to B in 3 and taken just 3 seconds, A से B तक दौड़ के गया और सिर्फ 3 सेकंड लिया और B से A तक आने में 5 सेकंड लिया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 सेकंड प्लस 5 सेकंड, that is 8 seconds. So total time is 8 seconds. Now, what is the speed? Speed, if someone asks what is the speed, then speed is equal to total distance travel is 40 meter and total time taken is 8 seconds. So this is 5 meter per second. This is the speed of the person.
So even though a person travel from A to B or B to a similar situation can be considered like a person start from A and travel to B 20 meter, right? And then he travel again from B to C, that is 10 meter, and from C to D, that is again 10 meter, like this, say A to B, and then B to C, and then C to D, and that is also 10 meter. And he has taken 3 seconds to travel from A to B, and next 3 seconds travel to B and C, and then 2 seconds from C to D. In overall, the total distance traveled is also here 40 meter, and the total time taken is 8 seconds again. 3 seconds plus 3 seconds, 6 seconds plus 2 seconds is 8 seconds. So here again speed is total distance traveled, that is 40 meter is the total distance, and time is 8 seconds. So again this is 5 meter per second. So irrespective of direction, बिना डायरेक्शन को ध्यान में रखे हुए, irrespective of direction, what the direction followed during traveling of any particular distance, क्या डायरेक्शन रखा गया किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, इससे कोई मतलब नहीं. मतलब है तो क्या है कि कितना डिस्टेंस उसने टोटल ट्रैवल किया. इसलिए डिस्टेंस को चूंकि बिना ये डायरेक्शन का है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है, इसलिए डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे और स्पीड को भी स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. ठीक है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज मीटर. डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में. एंड स्पीड इज देयरफॉर स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और इसमें भी इसकी यूनिट होती है एंड एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड. तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे और डिस्टेंस को हमेशा मीटर में एक्सप्रेस करेंगे. ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, ध्यान रहे. स्केलर उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं हो. जैसे टाइम, टाइम में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है. आप किसी से पूछते हैं कि आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो कहता है 8 बज रहे हैं. तो आप ये नहीं पूछते कि 8 उत्तर की ओर बज रहा है, दक्षिण की ओर बज रहा है, या साउथ की ओर, या नॉर्थ की ओर, या ईस्ट की ओर. इसका कोई सेंस नहीं है. इसी तरह से आप कोई वजन करते हैं, तो वजन करते हैं तो मास जो होता है वो केजी में होता है. लीटर दूध आपको लेना है, आप जाके दुकानदार से ये नहीं कहते 2 लीटर दूध आप साउथ से देना मुझे या नॉर्थ से देना. ऐसा नहीं है, उसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है. लेकिन पोजीशन अपने स्कूल का, जैसे एग्जांपल दिया था कि आपको अपने स्कूल का पोजीशन डिफाइन करना है, तो आपको ये बताना है कि 2 किलोमीटर है, तो ये भी बताना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर किधर है. आपके घर से 2 किलोमीटर किस ईस्ट में जाएंगे तो कोई और डेस्टिनेशन होगी, नॉर्थ में कोई और जगह होगी, साउथ में कोई और जगह होगी, है ना. तो इस तरह से डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकते हैं. So it will be better to say that distance is defined, speed is defined as. तो ये बेहतर होगा, क्योंकि अधिकांश जब बॉडी ट्रैवल कर रहा होता है तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म ही होती है. जैसे ऊपर के केस में देखा कि पहले 3 सेकेंड लगाया 20 मीटर जाने में, दूसरे 10 मीटर जाने में सिर्फ 3 सेकेंड लगाया, और अगले जाने में 2 सेकेंड ही लगाया 10 मीटर. तो अलग अलग समय लग रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करने में अलग अलग टाइम लग रहा है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने में, इसलिए स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है. तो ऐसी स्थिति में स्पीड को बेहतर डिफाइन किया जा सकता है ऐसे: स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो ये कहना बेहतर रहेगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, और फिर इस स्पीड को एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं, है ना. तो ये पूरा डेफिनेशन हुआ. आप एवरेज स्पीड कहें या स्पीड कहें, ये होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन.
एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन अगर छोटी स्पीड हो तो सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर किया जा सकता है, और बड़ी स्पीड हो जैसे कार वगैरह की तो उसे किलोमीटर पर आवर में भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कार की स्पीड को आप कहते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार चल रही है, तो ये बड़ी स्पीड है। छोटी स्पीड हो बहुत छोटी तो उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सब यूनिट जो है ये स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे आप कर सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल कम से कम करके देखते हैं कि ये कैसे बनता है, एवरेज स्पीड क्या है। सपोज करो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं कि ए मैन ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू पटना with Delhi to Patna in 10 hours, right? And return back with another train in 12 hours. What is the average speed of his journey? What is the average speed of his journey? Speed of his journey. If distance between Delhi to Patna, is 1000 किलोमीटर, राइट से लाइक दिस 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत आसान सा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, 1000 किलोमीटर जाने में एंड 1000 किलोमीटर आने में। 1000 प्लस 1000 ये हो गया 2000 किलोमीटर, है ना डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर प्लस 12 आवर, दैट इज 22 आवर, है ना। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड अगर निकालना है पूरी जर्नी का तो हम ये लिख देंगे फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, right? So what will happen, that is 2000 upon 22, that is 1000, अगर 2 से कैंसिल कर दें तो 1000 अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको अगर डिवाइड करें तो 11 9 या 99, 1 बच गया, 1 पे 0, 10 हो गया, तो 10 पे फिर 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 9090 अप्रॉक्स किलोमीटर पर आवर, ये कह सकते हैं इसको, राइट ना। या 99 ये भी कह सकते हैं, 90 सही, 1/11, 11 9 या 99, सो 990, 1/11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ऐसे। तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस चूंकि यहाँ किलोमीटर में था और टाइम आवर में था, इसलिए स्पीड आ गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर डिवाइडेड बाई आवर। हमने मीटर पर सेकंड नहीं लिखी क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी किलोमीटर में डिस्क्राइब है और टाइम भी आवर में है, इसलिए ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब एक और नया टर्म सीखते हैं जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से ये अलग किस तरह से है, जरा ये समझिए पहले। डिस्प्लेसमेंट होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of a moving body is called displacement। अब इसमें बीच के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कोई पार्टिकल स्टार्ट हो ए से
और ए पर ही वापस आ जाए, यहां से ए से गए और यहाँ पे बी पे पहुंचे और फिर बी से आ जाए वापस यहां तक, इधर आ गए सी तक, तो ये सी पे पहुंच गए। अब डिस्टेंस जो होगा, मान लेते हैं ये है 15 मीटर और ये है 10 मीटर, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पाथ, ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में हमने क्या लिखवाया है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हो गया यहाँ पे 15 मीटर प्लस 10 मीटर, दैट इज डिस्टेंस हो गया एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। Distance is nothing else but actual length of path. Actual length of path traveled. Path traveled जैसा कि हमने पहले बताया आपको, तो इसलिए कितना हो गया ये 15 मीटर प्लस 10 मीटर, दैट इज 25 मीटर। सपोज ये 25 मीटर हो गया। अब ये 15 मीटर और 10 मीटर 25 मीटर डिस्टेंस हो गया, लेकिन अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस की बात करें तो ये होगा ए बी प्लस बी सी, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिफाइंड होता है। ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन, ये है फाइनल, और इन्हीं के बीच में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा ए सी, ए से सी तक। फाइनली तुम कहां से कहां तक आए हो, तो ए से सी तक आए हो, बस नथिंग एल्स। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी। अगर मान लेते हैं, वैसे कैलकुलेट नहीं किया है, एग्जैक्ट मेजर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ये 12 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 12 मीटर ही होगा, नथिंग एल्स। ये हमने जम्पशन लिया है, 12 मीटर एग्जैक्ट है ऐसा नहीं कह सकते, कितना है वो नहीं पता, हमने लिया है। मान लेते हैं कि यहाँ से 12 मीटर है, तो ये हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर ही है। डिस्टेंस कितना है 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन होता है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ए से बी तक कोई गया और ए से बी तक गया और फिर इसी डायरेक्शन में बी से ए तक वापस आ गया, तो यही हुआ क्या, इनिशियल पोजीशन भी यही है इनिशियल, और फाइनल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यही है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होगी 0। और डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं कि 15 मीटर था, तो 15 मीटर जाना और 15 मीटर आना, तो डिस्टेंस हो जाएगा 15 प्लस 15, दैट इज 30 मीटर। तो डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी का कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि बॉडी को यहाँ से ट्रेवल किया और बी पर गया और बी से वापस सी तक चला जाता, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी निगेटिव मानी जाती, क्योंकि मूवमेंट शुरुआत की डायरेक्शन इधर की थी और रिटर्न की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए उस डिस्प्लेसमेंट को हम निगेटिव मानते। कैसे, एक एग्जांपल दे ही देता हूं। ये देखो, मान लो कि यहां से कोई पार्टिकल गया ए से बी तक, यहां से यहां तक, ए से बी तक गया और बी से फिर रिटर्न पार्टिकल जो है वो पहुंच गया सी तक, यहां से फिर बी से चल के आ गया यहाँ सी तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये ए से बी तक की डिस्टेंस थी 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है टोटल 15 मीटर, और यहाँ से जब चले तो आ गए कितने 15 मीटर। तो अब डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी ए सी है, लेकिन ये 10 इधर की डायरेक्शन में है, इनिशियल डायरेक्शन की तरफ है। अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं डायरेक्शन को, तो अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो ये प्लस हो गया और -15 हो गया, तो ये 10 - 15 दैट इज -5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप रियल लाइफ में कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब होगा। जैसे आप मान लीजिए कि क्रेजी बॉल तो जानते हैं ना, क्रेजी बॉल होता है
जो छोटा सा बॉल होता है उसको आप जमीन पे पुश करें, यहां से अगर हम फेंक दे ऊपर और हमारे हाथ में ही आके रुक जाए, जहां से फेंका था वहीं पे आके, जहां से उछाला था वहीं पर आकर रुक जाए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो, क्योंकि जहां से चला था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हुआ। लेकिन अगर यहां से फेंके और यहां तक आकर रुक जाए, किसी चीज पे आकर अटक जाए, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसपे यहाँ अटक जाए, कोई पेड़ है, कोई झाड़ है, कोई कुछ भी है, तो यहाँ पे आके अटक जाए, तो ये डिस्प्लेसमेंट मोशन की डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अच्छा, अगर यहां से फेंका, यहां आके रुक गया कुछ हाइट पे, तो पॉजिटिव हुआ, है ना। अच्छा, यहां पे आ गया तो जीरो हो गया, और अगर नीचे गिर गया तो क्या हो गया? निगेटिव, है ना। तो इस तरीके से रियल लाइफ में भी जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी, थोड़ा लिख दो इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्टेंस of moving body cannot be negative और जीरो। मूविंग बॉडी है, रेस्ट में है, तब तो डिस्टेंस जीरो होगा, लेकिन अगर मूविंग बॉडी है तो उसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोनों को मेजर करते हैं किसमें? बोथ कैन बी मिलते हैं, दोनों को मेजर कर सकते हैं मीटर में। और अगली क्लास में फिर आगे बात होती है, और फिर हम बात करते हैं कि जब स्पीड के साथ डायरेक्शन होगा तब क्या करेंगे, तब उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा होगी। ठीक है।